Hello students, welcome back to the business economics lecture and welcome back to the journey of our economics. We're going to continue with the new topic of your previous chapter, that is the chapter number 2, the last topic and very important one, supply curve. बहुत ही ज़्यादा important है, ज़रा ध्यान देना. Supply curve of a individual firm, perfect competition बहुत ही ज़्यादा important chapter है and that's why it's taking the few important things which we're going to learn over here, which जो इन फ्यूचर हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है. तो यहाँ पे अगर जब ध्यान दोगे तो फर्म सप्लाई कर्व इन केस ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन हाउ इट विल बी. द फर्म सप्लाई कर्व मीन्स व्हाट, हाउ द इंडिविजुअल फर्म्स विल गोइंग टू सप्लाई देयर आउटपुट इनटू द मार्केट. एक इंडिविजुअल सप्लायर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में कैसे सप्लाई करता है एंड एट व्हाट प्राइस ही विल गोइंग टू सप्लाई एंड ही विल गोइंग टू अर्न द प्रॉफिट. कैसे प्रॉफिट अर्न किया जाए, कैसे सप्लाई किया जाए, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं. दोज थिंग्स विल गो टू सी. सो इन बिफोर when we talk about the supply curve, before continuing with the short run and before continuing with this particular topic, so all of us are aware of that कि when we talk about the supply curve, what it means, it means what, supply is related to the sales, supply is related to the seller, supply is related to the production of goods and services. जो already produce goods and services है उसको market में हम क्या कर रहे हैं, supply कर रहे हैं. That is nothing but what your supply is. यहाँ पे जब भी हम supply की बात करते हैं, there are the certain factors which are affecting to the supply. कुछ फैक्टर्स है जो सप्लाई को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. एंड सप्लाई को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. देयर आर द फ्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यस और नो, क्या होता है यहाँ पे, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द सप्लाई, जब भी हम बात करते हैं सप्लाई की, सप्लाई is nothing but relevant to the production. and production के लिए we need the certain factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. 4 factors of production की ज़रूरत पड़ती है: land, labor, capital and entrepreneur. And out of these 4 factors of production, labor is most variable factor, land is most variable factor. So basically land में जो raw materials होते हैं, the things which we are getting from the land, that is nothing but the variable in nature. That is what, variable in nature. Similarly, in terms of a capital, depending upon the situation, few things are fixed in nature and few things are variable. Again, entrepreneurship, it is fixed in nature. In short run ये क्या होता है, fix होता है. So 2 concepts if you're going to see, we are learning about the 2 concept, that is nothing but the fixed and second one is your variable. एक होता है fixed concept और एक क्या होता है तुम्हारा variable. When we talk about the fixed cost and when we talk about the variable cost, तो यहाँ पे क्या होता है, fixed cost is that cost जो incurred हम करते हैं fixed फैक्टर्स पे. कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स्ड इन नेचर होते हैं, जैसे वो बात होती है तुम्हारे कैपिटल की, बात होती है जो फिक्स असेट्स हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, दैट इज़ नथिंग बट द प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग. देन व्हाट, रेंट विच वी आर पेइंग फॉर द फैक्ट्री. These are the certain aspect जो आते हैं तुम्हारे फिक्स कॉस्ट में और तुम बोल सकते हो ये क्या है, फिक्स फैक्टर्स है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल, कैपिटल को क्या पे करते हैं हम, वी आर पेइंग द इंटरेस्ट टू द कैपिटल एंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट द फिक्स्ड इन नेचर. इसे क्या बोला जाता है, फिक्स कॉस्ट बोला जाता है.
Why we are calling it fixed cost and why we are calling it variable cost? Fixed cost का मतलब होता है वो cost जो प्रोडक्शन के चेंज होने पे चेंज नहीं होता. प्रोडक्शन अगर आउटपुट अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा. फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा. इट विल नॉट गोइंग टू चेंज व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग द सिंगल यूनिट और यू आर प्रोड्यूसिंग द 100 यूनिट्स और यू आर प्रोड्यूसिंग द 1000 और यू आर प्रोड्यूसिंग द 10,000 यूनिट्स. तुम कितना भी प्रोडक्शन करो, देर आर द सर्टन थिंग्स, देर आर द सर्टन आइटम्स, देर आर द सर्टन फैक्टर्स जो कभी चेंज नहीं होते. दैट इज़ नथिंग बट द फिक्स कॉस्ट. Fixed cost is that amount of money which does not change with the change in the output in terms of bookish knowledge. वो जो चेंज नहीं होता है आउटपुट के चेंज होने पे. अगर तुम 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, 100 करो, 1000 और 10,000 और इवन इफ यू गोइंग टू प्रोड्यूस द 0, द फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द फिक्स. The best example you can take of the interest, rent, and there are the many more things. Interest or rent, salary up to the certain mark. So interest and rent you can take the example of the fixed cost. क्या होता है ये फिक्स कॉस्ट? वो कॉस्ट होते हैं जो आउटपुट के चेंज होने पे चेंज नहीं होते हैं. सपोज आई हैव टेकन द वन फैक्ट्री क्लास, आई हैव चूजन, मैंने क्या किया, एक फैक्ट्री ले ली कहीं से. नाउ दिस इज वन फैक्ट्री विच आई हैव टेकन ऑन अ रेंट. नाउ ये फैक्ट्री मैंने रेंट पे ली कितने में? 10,000 में. 10,000 क्या है? मेरा रेंट है. सो ये रेंट जो 10,000 मैं पे कर रहा हूँ, आई एम पेइंग फॉर इंटायर 24 आवर्स. अब मैंने रेंट पे मैंने ले लिया है ये फैक्ट्री. ये फैक्ट्री मैं 24 आवर्स यूज़ करूँ, 12 आवर्स यूज़ करूँ, 8 आवर्स यूज़ करूँ या 1 आवर यूज़ करूँ. Nobody will going to tell me anything. Nobody will going to restrict me. कोई भी मुझे रोकेगा नहीं. क्यों? क्योंकि मैंने वो फैक्ट्री क्या की है? रेंट पे ली है. तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल 1 घंटे में, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे में हम लोग 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. 1 घंटे में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो मान के चलो वी आर वर्किंग फॉर 12 आवर्स, हम लोग 12 घंटे काम कर रहे हैं. तो उस हिसाब से हमने कितना प्रोड्यूस किया? 120 यूनिट्स. मान लो पूरे 24 घंटे मैं क्या कर रहा हूँ? वो फैक्ट्री यूज़ कर रहा हूँ. डे एंड नाइट्स लेबर्स को मैंने लगाया हुआ है, रॉ मटेरियल लगाया हुआ है, प्रोडक्शन चालू है, 24 घंटे प्रोडक्शन हो रहा है. तो वो सिचुएशन में कितना प्रोडक्शन होगा? 240 यूनिट्स. 1 घंटे में अगर 10 यूनिट होता है तो 12 घंटे में 120 और 24 घंटे में 240 होगा. अब मैं 240 यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ कि 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ कि 120 यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ, मुझे सामने वाले को रेंट कितना देना है? सिर्फ 10,000 ही देना है, 10,000 ही देना है. चाहे मैं उसको 24 घंटे के लिए यूज़ करूँ, चाहे मैं कम प्रोड्यूस करूँ, ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, आई एल गोइंग टू पे द सेम अमाउंट ऑफ रेंट. इन द सिमिलर मैनर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, डेप्रिशिएशन ऑल्सो. These are the certain things which are fixed in nature. जितना भी यूज़ करो उतना तुमको पे करना ही है, उतना तुमको पे करना ही है. That is nothing but the fixed in nature, जो होता है हमारा fixed cost. In the similar manner, if you will going to see, the next one is what your variable cost. वेरिएबल कॉस्ट का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो तुम रॉ मटेरियल से. लेबर्स को हम जो पे करते हैं वेजेस एंड सैलरीज से, क्योंकि ये दोनों ऐसे फैक्टर्स है, ये दोनों ऐसे कॉस्ट है विच चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट. वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच विल गोइंग टू चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट. जैसे तुम्हारा आउटपुट चेंज होगा, जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा, वी नीड द मोर रॉ मटेरियल, लेबर्स की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी. जब हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है. प्रोडक्शन जहाँ इंक्रीज़ हुआ, जहाँ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, वहाँ पे तुम्हारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा. वहीं वेजेस एंड सैलरीज भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा. वाई? बिकॉज वहाँ पे लेबर्स ज़्यादा हमें लगेंगे प्रोडक्शन करने के लिए. सो
वेरिएबल कॉस्ट मीन्स जो आउटपुट के चेंज होने पे चेंज हो, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, लाइक पर रॉ मटेरियल्स एंड लेबर्स का वेजेस एंड सैलरीज. So over here, why there is a need to understand these two concepts? The fixed, the first one is your fixed cost, and second one is nothing but your variable cost. ये दो फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमाइन क्या करते हैं तुम्हारा, इट डिटरमाइंस योर सप्लाई. ये दो फैक्टर्स क्या डिटरमाइन करते हैं तुम्हारे सप्लाई. कैसे? तो टू कॉन्सेप्ट्स आते हैं. फर्स्ट वन इज योर शॉर्ट रन एंड सेकेंड वन इज योर लॉन्ग रन. पहला है तुम्हारा शॉर्ट रन और दूसरा क्या है तुम्हारा लॉन्ग रन. शॉर्ट रन की बात करें तो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है वो होता है शॉर्ट रन, और जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है वो होता है लॉन्ग रन. 10, 12, 25 साल, 20 साल, 30 साल, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, दैट इज़ लॉन्ग रन. शॉर्ट रन मीन्स आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में कुछ चीज़ें करने वाले हो तुम, दैट इज़ अ शॉर्ट रन. आने वाले 2 साल के अंदर क्या करने वाले हो, आने वाले 3 साल के अंदर क्या कर सकते हैं, आने वाले 6 महीने के अंदर क्या करना है, दैट इज़ अ शॉर्ट रन पीरियड. आने वाले 10 साल के अंदर क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है, 10 साल बाद क्या होना चाहिए, दैट इज़ नथिंग बट अ लॉन्ग रन इन नेचर. सो दोज थिंग्स विल गोइंग टू कंटिन्यू ओवर हियर. So basically, if you're going to see the firm supply curve, a firm in a perfectly competitive market accepts the price decided by the market demand and supply forces. Market demand and market supply forces, that's why it is known as price taker. Given the price, the decision has to be taken by the firm about the quantity of output being produced. अब यहाँ पे क्या है, प्राइस जो है, प्राइस डिसाइड किया है किसने, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ने. लेकिन आउटपुट किसके हाथ में, आउटपुट वो है इंडिविजुअल सेलर के हाथ में. प्राइस भले ही मार्केट ने डिसाइड कर दिया कि हमें ये प्राइस पे क्या करना है, ये प्राइस मार्केट में प्रिवेल होने वाला है, बट प्राइस तुमने डिसाइड किया, चलो ठीक है डिसाइड किया, लेकिन आउटपुट मैं खुद का आउटपुट कितना सप्लाई करूंगा, हाउ मच आउटपुट आई विल गोइंग टू सप्लाई इनटू द मार्केट इन फ्रंट ऑफ द ऑल द कॉम्पिटिटर्स, वो डिसीजन किसके पास है, इंडिविजुअल सेलर के पास. दैट इज इन आवर एग्जांपल, लेट्स से इट्स मी, मैं हूँ इंडिविजुअल सेलर, तो मैं डिसाइड करूँगा मैं कितना गुड्स प्रोड्यूस करूँगा, कितना मार्केट में सेल करूँगा और कितना प्रॉफिट में क्या करूँगा, अर्न करूँगा. That is in my case, that is my decision. So the decision depends upon the discussed earlier as discussed earlier on the firm's MR and MC, it will going to be determined. So two concepts are there. The first one is your short run and another one is your long run. Two kinds of a supply curve. Short run supply curve की जब बात की जाती है, when we talk about the short run supply curve, in short run as we are familiar of that the firm's cost consist of a fixed and variable. short run में तुम्हारा total cost divide होता है दो पार्ट में, एक होता है तुम्हारा fixed cost और एक होता है तुम्हारा variable cost. fixed cost वो cost होता है जो short run में change नहीं होता, जो short run में क्या नहीं होता, change नहीं होता. fixed cost short run में change नहीं होता. short run की बात की जाए तो आने वाले let's say 2 years में, आने वाले 2 साल में, आने वाले 6 महीने में, आने वाले 12 महीने में, दैट इज़ द नथिंग बट योर शॉर्ट रन. 3 months, 2 months, 1 month और 15 days. This is a short run period. So in short run we cannot change the fixed cost. fixed cost हम change नहीं कर सकते short run में. क्यों? लेट्स से इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में 1 साल के अंदर ही चेंज नहीं कर सकता, 1 साल के अंदर ही फिक्स असेट्स को मैं चेंज नहीं कर सकता. आई कैन नॉट चेंज माई इंटायर प्लांट, इंटायर फैक्ट्री फ्रॉम मुंबई टू पुणे और इन एनी अदर स्टेट विद इन अ शॉर्ट रन. आई कांट डू दैट. आई कांट increase the
आउटपुट बाय जस्ट एडिशनल इंक्रीजिंग दैन एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी। मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो मैं ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी यूटिलाइज करूँ, यूज़ करूँ, दैट आई कैंट डू इन केस ऑफ अ शॉर्ट रन। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत है, और मशीन्स दीज आर दैट मशीन्स आर नथिंग बट योर फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स परचेज करने के लिए लगभग हमें कुछ महीनों का नहीं, कुछ सालों तक वेट करना पड़ता है। इट इज़ नॉट द करंट थिंग, इट इज़ नॉट दैट थिंग जो 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ में आ जाएगा। फिक्स असेट्स की बात की जाए और जो आइटम्स जो फिक्स कॉस्ट के अंदर आते हैं, द फैक्टर्स विच वी आर कंसिडरिंग एज अ फिक्स फैक्टर, वो चीज़ों को परचेज करने के लिए हमको बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है। द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विल गोइंग टू पे फॉर द सेम, जो हम एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, जो हम कमा नहीं सकते, हम लोग जो सेविंग्स नहीं कर सकते विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स वाई फिक्स कॉस्ट क्या होता है तुम्हारा, शॉर्ट रन में फिक्स होता है। वी कैन नॉट चेंज द सर्टन फैक्टर्स। शॉर्ट रन में कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो क्या होता है तुम्हारा फिक्स हो जाता है, जो क्या होता है तुम्हारा फिक्स हो जाता है। अब बात की जाए लॉन्ग रन में, तो शॉर्ट रन की बात की जाए, पहले शॉर्ट रन कर देते हैं। शॉर्ट रन दो टाइप में होते हैं, एक होता है तुम्हारा फिक्स और एक होता है तुम्हारा वेरिएबल। सपोज मुझे नॉर्मली मैं 100 यूनिट्स 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ, आई एम प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स नॉर्मली, ये मेरा डेली का कंजम्पशन है, सॉरी डेली का प्रोडक्शन है। नाउ बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न एक नया ऑर्डर आया, और ये ऑर्डर मुझे 200 यूनिट्स का आया। कितने यूनिट्स का आया? 200 यूनिट्स का। अब 200 यूनिट्स को एक्स्ट्रा जो आया ऑर्डर, ये एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इन शॉर्ट रन आई कैन नॉट इंक्रीज द फिक्स कॉस्ट, आई कैन नॉट परचेज द न्यू प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग। नया बिल्डिंग परचेज करे 200 यूनिट्स के लिए? नहीं। नया मशीनरी परचेज करे? नहीं। तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हम चेंज नहीं कर सकते जस्ट फॉर 200 यूनिट्स। नई मशीन परचेज थोड़ी ना करेंगे। क्या करेंगे फिर हम लोग? विल गोइंग टू सी द वेरिएबल कॉस्ट। ना वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट जो शॉर्ट रन में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल इज नथिंग बट वॉट योर लेबर, रॉ मटेरियल। नाउ 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हम जितना रॉ मटेरियल यूज़ करते होंगे, उतने रॉ मटेरियल में हम एक्स्ट्रा 200 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इफ़ आई एम यूजिंग द सर्टन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग द 1000 यूनिट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि 200 यूनिट्स भी उसी में बन जाएंगे। एक्स्ट्रा 200 यूनिट्स के लिए मुझे एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट रन में अरेंज कर सकता हूँ। शॉर्ट रन में विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई कैन नॉट अरेंज द फिक्स कॉस्ट, आई कैन नॉट अरेंज द फिक्स असेट्स, प्रॉपर्टीज, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मैं अरेंजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन शॉर्ट रन के केस में आई कैन मेक एन अरेंजमेंट फॉर द लेबर्स। 200 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है, एक काम करो, एक्स्ट्रा लेबर्स को क्या करो, एम्प्लॉय करो। या फिर ये जो लेबर्स हैं जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो 8 आवर्स के लिए काम करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोडक्शन करने के लिए उनको क्या करो, एक्स्ट्रा 2 आवर्स काम करने के लिए बोलो। चलो 8 घंटे काम करते हो तुम, थोड़ा और प्रोडक्शन करना है, एक काम करो 8 घंटे की जगह पे आज 2 घंटे ज़्यादा काम कर लो, ओवर टाइम ले लो मुझ से, जस्ट टेक द ओवर टाइम अमाउंट, ओवर टाइम वेजेस, और तुम क्या करो, तुम इतना प्रोडक्शन करके दे दो। दैट इज़ नथिंग बट द काइंड ऑफ लेबर जो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ज़्यादा आउटपुट हुआ, लेबर बढ़ा सकते हो, कम आउटपुट हुआ, लेबर घटा सकते हो। सो यू कैन चेंज द लेबर्स एंड द रॉ मटेरियल्स विच इज़ नथिंग बट अ वेरिएबल इन नेचर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉट योर वेरिएबल कॉस्ट। सो ये था तुम्हारा शॉर्ट रन में क्या, शॉर्ट रन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये था तुम्हारा। नाउ द सेम इफ यू गोइंग टू सी, नाउ लेट अस कंटिन्यू। द फिक्स कॉस्ट हैज़ टू बी बोर्न बाय द फर्म इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट कौन बोर्न करता है, हु विल गोइंग टू बेयर, द फर्म, irrespective of the losses or the profit. Now fixed cost, as I have told you, it is nothing but your rent, interest, these are the fixed cost.
सॉरी, दिस आर द फिक्स कॉस्ट। नाउ रेंट और इंटरेस्ट के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, परफेक्ट कंपटीशन में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्लास हमारे कि हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर ले। वी विल नॉट बी एबल टू अर्न द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी टाइम लगता है, इट विल गोइंग टू टेक द टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इफ़ यू आर नॉट, इफ़ अ सेलर, एक सेलर है जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल नहीं कर पा रहा है, उसके लिए बहुत भारी पड़ता है कि वो फिक्स कॉस्ट को बेयर करें। इफ़ आई हैव टेकन द वन प्लॉट, अगर एक मैंने दुकान ले ली और वहाँ पे मैंने क्या किया, एग्रीकल्चर गुड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सेल करना चालू किया, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के केस में क्या होता है, ये पैरिशेबल होते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो वो अगर केस में, अगर कोई भी रेंट पे मैंने ले लिया है, एक दुकान ले ली है, मैंने वेजिटेबल शॉप चालू कर दिया, तो वो रेंट का पेमेंट करने के लिए मुझे कुछ अमाउंट ऑफ मनी अर्न करना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने वेजिटेबल्स परचेज किए हैं, जो मैंने फ्रूट्स परचेज किए हैं फ्रॉम द होल सेलर, वो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का क्या करना पड़ेगा मुझे, उसका कॉस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा ऐसा कि वेजिटेबल और फ्रूट जो मैंने होलसेलर से लेके अपनी दुकान में मैंने डाला, और वहाँ से मैंने क्या किया, सेल करना चालू करना है। सो हमने क्या करना है, सेम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सेल करना है, और जो भी अमाउंट ऑफ मनी आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, और उसको यूज़ करेंगे हम लोग रेंट का पेमेंट करने के लिए। तो रेंट का पेमेंट कब तक नहीं होगा, जब तक हमारा वेजिटेबल सेल नहीं होगा। अब जब वेजिटेबल सेल होना चालू होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या बेयर करेंगे, विल गोइंग टू सी द कॉस्ट ऑफ द वेजिटेबल। जो परचेज करने के लिए जो परचेजिंग कॉस्ट है, होलसेल ट्रेड जब होता है, व्हेन वी आर परचेजिंग इट फ्रॉम द होलसेलर, तो होलसेलर को पेमेंट, सप्लायर को पेमेंट करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है, और वो पैसे कहाँ से आएंगे, सेल करने के बाद। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन शॉर्ट रन firm will going to bear the fixed cost, and the variable cost however can be avoided if the firm's total revenue does not cover the total variable cost. If firm's revenue does not cover the total variable cost, so total variable cost को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं जब total revenue तुम्हारा कवर नहीं कर रहा है total variable cost। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है क्लास, इन शॉर्ट इफ़ आई से, एक शॉर्ट में समझाता हूँ मैं। शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो टू काइंड्स ऑफ अ कॉस्ट आर देयर, एक होता है तुम्हारा फिक्स और एक होता है तुम्हारा वेरिएबल। जब भी हम नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं मार्केट में, हमारा इंटेंशन क्या होता है, हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम वेरिएबल कॉस्ट को क्या करें, रिकवर कर लें। वी शुड रिकवर द वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट एंड देन वी शुड थिंक अबाउट द फिक्स कॉस्ट। जो हमने लागत है, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, जो लेबर्स का कॉस्ट है, दैट इज़ नथिंग बट द वेरिएबल कॉस्ट। तो इनिशियली हमको उतना प्रॉफिट अर्न करना है, उतने अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करना है, जिससे जो भी अमाउंट हम अर्न करें उससे हम पेमेंट करें किसका, वेरिएबल कॉस्ट का। सो इन द शॉर्ट रन द फर्म्स टोटल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल्स टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट द इनकम ऑफ द सेलर, वो इक्वल होनी चाहिए एटलीस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए। क्यों, अगर तुम इतना भी इनकम अर्न नहीं कर पा रहे हो जिससे तुमने रॉ मटेरियल का कॉस्ट पे करना है और लेबर का कॉस्ट पे करना है, अगर तुम इतना भी अमाउंट अर्न नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, दैट मीन्स व्हाट, आगे जाके तुम्हारा बिजनेस क्या होगा, शट डाउन, बिजनेस बंद हो जाएगा। एटलीस्ट तुमको उतना पैसे कमाने हैं जिससे तुम लेबर्स का वेजेस और सैलरीज का पेमेंट कर सको, और जो भी तुमने रॉ मटेरियल परचेज किया है सप्लायर से, एटलीस्ट उसको तो पेमेंट कर दो, उतना तुमको इनकम अर्न करना है, दैट मच अमाउंट ऑफ इनकम यू शुड अर्न। दैट्स वाई ओवर हियर वी शुड फोकस ऑन द वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट। इतना इनकम अर्न करो, एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट का पेमेंट तुम कर दो, दैट इज नथिंग बट वॉट, टोटल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल्स टू इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एटलीस्ट उतना पेमेंट कर दो। सो TVC, the point where the TR is equals to TVC is called a shutdown point। ये शटडाउन पॉइंट क्यों होता है, जैसा मैंने बताया कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका, ये वो कॉस्ट होता है जो रॉ मटेरियल जो हमने परचेस किए, लेबर्स को हमने जो एम्प्लॉय किया है,
उनको क्या करना है, पेमेंट करना है। अगर लेबर्स को पेमेंट नहीं किए तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन क्या होगा, रुक जाएगा। प्रोडक्शन रुक गया तो बिजनेस बंद। और रॉ मटेरियल का पेमेंट अगर नहीं किया तुमने सप्लायर को, तो सप्लायर भी रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा, उससे भी क्या होगा, प्रोडक्शन बंद होगा। सो इतना एटलीस्ट तुम अर्न करो कि सप्लायर और लेबर्स को पेमेंट करो। दैट इज नथिंग बट योर टोटल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल्स टू वॉट, योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एंड द फर्म्स विल नॉट ऑपरेट एंड इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग एट अ पॉइंट वेयर TR इज इक्वल्स टू TVC। ये कहाँ पे फंक्शन करेगा, जहाँ पे तुम्हारा टोटल रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। अगर टोटल रेवेन्यू इक्वल है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, तब ये क्या होगा, फंक्शन करना चालू होगा। सो लेट अस सी द वन ग्राफ एंड इन दिस ग्राफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। सो पे अटेंशन and listen very carefully. Now initially we're going to draw this. This is what your MR, AR, or you can say the price. MR, AR and the price. Now इसके बाद दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। अब जैसा हमने पढ़ा हुआ है क्लास, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट विल गोइंग टू इंटरसेक्ट द MR कर्व फ्रॉम बिलो, नीचे से जब इंटरसेक्ट करेगा, इट विल गोइंग टू इंटरसेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज अ पॉइंट ऑफ व्हाट, इक्विलिब्रियम। एंड इस पे हमारा दिस इज वॉट योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है तुम्हारा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन क्लास। ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स दैट सिचुएशन, ये क्या इंडिकेट करता है, ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E, जिसमें हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, Q1। सो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट इक्वल है किसके, टोटल रेवेन्यू के, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल है किसके, टोटल रेवेन्यू के, विच इज़ इंडिकेटेड बाय द P and 0। ये पोर्शन देख रहे हो, कैन यू सी दिस पोर्शन, ये पोर्शन इंडिकेट क्या कर रहा है, पोर्शन POQE रिप्रेजेंट्स द रेवेन्यू पोर्शन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेवेन्यू। कैसे, तो देखो ये P का लाइन क्या है, देखो दिस इज व्हाट, MR AR इज नथिंग बट व्हाट, योर रेवेन्यू एग्जैक्टली। तो एक तरह से अगर तुम देखोगे तो PEQ1 एंड योर O ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, तुम्हारा रेवेन्यू को। क्यों, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन गई है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्या है, तुम्हारा रेवेन्यू कब है, तो इसके हिसाब से ये क्या होगा, ये रेवेन्यू हो गया। फिर उसके बाद अगर देखोगे MC ने MR को कट किया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिला। इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में ये कर्व देख रहे हो, ये कर्व क्या है तुम्हारा, AVC है। AVC इज नथिंग बट योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। AVC कर्व भी क्या हो रहा है, ये AVC कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट E पे। सो उसके हिसाब से अगर तुम देखोगे, इफ यू गोइंग टू सी एज पर दिस पॉइंट अगेन POQ1 and E, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, POQ1 and E, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जरा ध्यान देना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दोनों क्या है, इक्वल्स टू ईच अदर है। एट दिस पर्टिकुलर ई इफ यू गोइंग टू सी, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी है और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भी है, रेवेन्यू भी है, कॉस्ट भी है। दैट मीन्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट, और यू कैन से
इट मीन्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहां पे सिचुएशन क्या है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जरा ध्यान देना, टोटल रेवेन्यू इक्वल है किसके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम सिचुएशन है। इसके पहले अगर देखोगे क्लास, इफ यू गोइंग टू सी दिस बिफोर, ये तुम्हारा P है और ये तुम्हारा क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे देखो प्राइस, यहाँ पे कैन यू सी दिस गैप, ये गैप क्या है, ये गैप रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, तुम्हारा लॉस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस। विच काइंड ऑफ अ लॉस इट इज, ये वो सिचुएशन है जहां पे जो एक सेलर है, एक सेलर उतना पैसे नहीं कमा पा रहा है, उतना भी इनकम अर्न नहीं कर पा रहा है जिससे वो वेरिएबल कॉस्ट का पेमेंट कर दे। द सेलर इज नॉट एबल टू अर्न इवन दैट मच अमाउंट ऑफ मनी टू रीपे और टू पे द लेबर्स कॉस्ट एंड द रॉ मटेरियल कॉस्ट। तुम इतना भी अर्न नहीं कर पा रहे हो कि एटलीस्ट तुम रॉ मटेरियल का खर्चा निकाल लो। सो ये सिचुएशन में क्या होगा, दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज क्लास योर, this situation is also known as what, your shutdown position. It is also known as what, your shutdown position. तो इसके पहले if you're going to see before the point E there is a shutdown position. Why there is a shutdown position? Shutdown position is there because यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन योर एवरेज revenue, or total revenue is less than your total variable cost. So as you can see in the figure, we have the cost curve AC, AVC and MC. The price is equals to what, AR and MR, which is a horizontal straight line. MC moves through the lowest point of the average variable cost and AC, and the point E1, the lowest point on the AVC, which we're going to see. एक बार और समझते हैं जरा इसको। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जरा एक बार और समझते हैं इसको। ये फर्म का सप्लाई कर्व कैसे वर्क करता है। जरा ध्यान देना, ये है MR, AR और P। ये है तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट, ये है तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज व्हाट योर एवरेज कॉस्ट। नाउ ये तीन डायग्राम्स हैं, देयर आर द थ्री कर्व्स। If you're going to see these three curves, if you're going to see these three curves, this is point E which represents TR is equals to TVC। इसके पहले अगर प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे अगर प्रोडक्शन होता है तो ये क्या होगा, शट डाउन पोजिशन। यहाँ पे अगर प्रोडक्शन हुआ, शट डाउन प्रोडक्शन। पॉइंट E इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, विच इज नथिंग बट Q1। इसके पहले अगर किया तो क्या होगा, लॉस हो गया, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगा किससे, आपके रेवेन्यू से। इसके बाद इफ़ यू गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन, हमने प्रोडक्शन किया, हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। हमको क्या करना है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है।
there is a need to increase the production for earning the good amount of profit. उसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हम क्या करेंगे? अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे. लेकिन आउटपुट यहाँ पे जब इंक्रीज करते हैं, व्हेन विल गोइंग टू इंक्रीज आवर आउटपुट, जब भी हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट जो इंक्रीज होता है वो इंडिकेट किससे होता है? वो इंडिकेट करते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कर्व से. व्हेन योर आउटपुट विल गोइंग टू इंक्रीज, द मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. क्लास जरा ध्यान देना. व्हेन योर आउटपुट विल गोइंग टू इंक्रीज, मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है. एंड दैट्स वाई हम लोग क्या बोलते हैं? वी आर सेइंग दैट कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व is representing the supply of a goods and services. It is representation of the supply, and sometimes we are also calling it as a supply curve. क्यों? क्योंकि जब हमको supply increase होना पड़ता है, when we wanted to increase our supply, वो टाइम पे क्या होता है? वो टाइम पे हमें supply increase करने के लिए again there is a need of a when we wanted to increase our supply of the output का supply increase करने के लिए हमें production करने की ज़रूरत पड़ेगी. और जब हमारा production होगा तो एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होगा, दैट इज नथिंग बट योर मार्जिनल कॉस्ट ओनली. जब भी हम लोग एक्स्ट्रा सप्लाई करते हैं, सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? व्हेन वी विल गोइंग टू इंक्रीज आवर सप्लाई अगर इंक्रीज करते हैं तो एक्स्ट्रा सप्लाई इंक्रीज करते हैं जब, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होगा. वो एक्स्ट्रा कॉस्ट इज नथिंग बट योर मार्जिनल, दैट इज एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. सो ओवर हियर व्हेन वी वांटेड टू इंक्रीज आवर सप्लाई, व्हेन वी वांटेड टू इंक्रीज आवर supply, what we will going to do over here? Simply we will going to wait for the market to respond. थोड़ा वेट करेंगे मार्केट के रिस्पॉन्ड करने के लिए. और यहाँ पे क्या होगा? जब मार्केट में, सिंस प्राइस कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस. जब मार्केट फोर्सेस प्राइस को इंक्रीज करेंगे तब जाके हम क्या करेंगे? अपना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे. मार्केट में जब प्राइस इंक्रीज होगा तभी हम लोग आउटपुट क्या करेंगे? सप्लाई इंक्रीज करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ और हमने अपने आउटपुट सप्लाई कर दिए तो यहाँ पे क्या होगा? देयर विल बी द सिचुएशन ऑफ शट डाउन. हम यहाँ पॉइंट ई पे अपना प्रोडक्शन अभी कर रहे हैं, पॉइंट ई पे हम लोग Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर यहाँ पे अगर हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, सपोज अगर Q1 से अगर प्रोडक्शन हम Q2 या Q3 करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? शट डाउन का पोजीशन आ जाएगा. क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन योर मार्जिनल रेवेन्यू और यू कैन से द टोटल रेवेन्यू. वेरिएबल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन द मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू. तो ये सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे किस चीज़ का? प्राइजेस के इंक्रीज होने का. When the price will going to increase, at that time what we will going to do? We'll going to produce our goods and services. तो let's say मार्केट में because of the certain reason उन्होंने क्या किया? सबने डिसाइड किया कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को क्या करना है? फोर्सेस को एक साथ लेके आना है और हमें प्राइस को इंक्रीज करना है. तो हमने क्या किया? प्राइस जो पहले P था, लेट्स से ये प्राइस को हमने क्या किया? इंक्रीज कर दिया. That we have increased our price to MR1, AR1 और you can say the P. P से क्या किया हमने? प्राइस को इंक्रीज कर दिया P1. अब P से प्राइस जब इंक्रीज हुआ P1 तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अगेन ये न्यू MR कर्व को MC कर्व ने क्या किया? इंटरसेक्ट किया फ्रॉम बिलो. MR कर्व को MC कर्व ने नीचे से इंटरसेक्ट किया. दैट मीन्स हमारे पास वापस से एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया. जरा ध्यान देना. MC कर्व नए MR कर्व को सेम MC कर्व ने क्या किया? यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है फ्रॉम बिलो, एंड दैट्स वाई द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट वी गॉट विच इज नथिंग बट वॉट योर एट विच वी विल गोइंग टू प्रोड्यूस वॉट? Q2. तो सप्लाई कब इंक्रीज होगा? सप्लाई तब इंक्रीज होगा जब मार्केट में प्राइजेस इंक्रीज होंगे. जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगा तब एक इंडिविजुअल सेलर अपने आउटपुट इंक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि जब तक प्राइस इंक्रीज नहीं होता है, अगर मार्केट में प्रोड्यूसर ने, सेलर ने प्रोडक्शन किया और मार्केट में सप्लाई इंक्रीज कर दिया तो वो सिचुएशन में सप्लायर और द सेलर विल गोइंग टू सफ़र फ्रॉम द लॉसेस.
बिकॉज वो सिचुएशन ऐसा होगा कि सेलर जो है वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाएगा. दैट इज द सिचुएशन. तो यहाँ पे क्या होगा, देन विल गोइंग टू वेट फॉर द प्राइजेस टू मूव अप. यहाँ पे देखो प्राइजेस क्या हुए हैं, प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ. बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस हमारा क्वांटिटी क्या हो गया, इंक्रीज कर हो गया. और ये ऐसे सिचुएशंस पे क्या होगा, इफ यू गोइंग टू सी एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी आर अर्निंग, आवर सप्लाई हैज़ इंक्रीज इनटू द मार्केट. एंड ये स्मॉल प्रपोर्शन, अगर एक छोटे पोर्शन के लिए अगर तुम देखोगे, if you're going to see, if you're going to see this portion, if you're going to see this portion, the journey of equilibrium points, the journey of equilibrium points, this is only known as what, your supply curve. This is only known as what, your supply curve. ये क्या है, गया तुम्हारा सप्लाई कर्व हो गया. क्यों? क्योंकि ये E से E1 की जर्नी है. पहले हमने E पे प्रोडक्शन करते थे, फिर क्या किया हम लोग ने, E1 में प्रोडक्शन करना चालू किया. क्यों? क्योंकि E1 पे प्रोडक्शन किया तो ज़्यादा आउटपुट आया और उसके वजह से हमारा प्रॉफिट भी क्या हो गया, इंक्रीज हुआ. इन द सिमिलर मैनर the same situation with the E. This is known as what, your individual firm supply curve. जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगा तभी हम क्या करेंगे, अपना सप्लाई इंक्रीज करेंगे. अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज नहीं होता है तो हमें अपना सप्लाई इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट थिंग यू विल गोइंग टू कीप इन माइंड. सो इफ यू गोइंग टू सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द सेम, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट में द सेम सिचुएशन क्या हो रहा है. यहाँ पे फिगर 2.5 जो ऑलरेडी हमने देखा, AC, AVC एंड MC है. प्राइस क्या है, ये है, विच इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. MC मूव्स थ्रू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द AVC एंड AC. तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, इफ यू गोइंग टू पे अटेंशन ओवर हियर, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट. ये क्या था, हमारा लोएस्ट पॉइंट था किसका, AVC का और AC का. AVC और AC ये दोनों का लोएस्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, पॉइंट E. एंड इफ द प्राइस फॉल्स द बिलो दैट लेवल द फर्म विल क्लोज डाउन एज द टोटल रेवेन्यू इज लेस देन योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट. यहाँ पे क्या होगा, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो हमारा रेवेन्यू डिक्रीज होगा, उसके वजह से टोटल एज कम्पेयर टू द वेरिएबल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा. टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हुआ मतलब हम पेमेंट नहीं कर पा रहे. जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, जो लेबर्स हैं, उनका पेमेंट भी हम नहीं कर पा रहे हैं. इतना रेवेन्यू भी अर्न नहीं कर पा रहे कि उनका पेमेंट कर सके. सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज द सेम थिंग. इफ यू गोइंग टू सी, इट स्टार्ट्स इट्स प्रोडक्शन एट अ पॉइंट E1. एज द प्राइस इंक्रीजेज द प्रोडक्शन टू इंक्रीजेज, एंड सिंस द एडिशनल प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द एडिशनल कॉस्ट, इसके वजह से क्या हुआ, एडिशनल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है एडिशनल कॉस्ट, और जिसके वजह से हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, चेंज होगा. And the change in the marginal cost, the change in the marginal cost line, that change is nothing but the supply curve जो हमने यहाँ पे देखा. Can you see this one from E to E1? ये it is nothing but your marginal cost only. MC कर्व ही है, लेकिन MC कर्व पे ही तुम्हारा सप्लाई कर्व यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है. We are representing the supply curve on the MC curve itself from E to E1. ये जो पोर्शन है E से E1 का, ये तुम्हारा MC कर्व पे ही है, लेकिन ये क्या हो गया तुम्हारा सप्लाई. दिस इज अ सप्लाई कर्व एज पर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. देन द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, supply curve of a firm, therefore it is a marginal cost curve about its AVC, and in the figure 2.5 the supply curve is E1 E2 part of the MC. जो E1 E2 पार्ट है, और हमारे एग्जांपल में जो E और E1 का पार्ट है वो क्या था, तुम्हारा सप्लाई कर्व था. and the short run starts at a point where the P is equals to average variable cost. Thereafter it follows the marginal cost curve when the P is equal to MC, and marginal cost curve is the competitive firms
शॉर्ट रन सप्लाई कर्व सो लॉन्ग एज प्राइस इज ग्रेटर देन एबीसी। शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर फोकस करना है हमारा। अगर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस होता है क्लास, जितना भी तुम मार्केट में प्राइस चार्ज कर रहे हो एडिशनल आउटपुट के लिए, एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करके वो एडिशनल आउटपुट मार्केट में सेल कर रहे हो, और उसके लिए तुम जितना भी प्राइस चार्ज कर रहे हो वो प्राइस इक्वल होना चाहिए वो एडिशनल आउटपुट के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। दैट इज नथिंग बट योर मार्जिनल कॉस्ट। वो इक्वल होना चाहिए एडिशनल कॉस्ट के, एडिशनल आउटपुट के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। एंड अ फर्म वुड नॉट प्रोड्यूस बियॉन्ड द E2 अनलेस द प्राइस इज इंक्रीजेस। अब E1 से E2 पे आया, या बोल सकते हो आप हम E से E1 पे आए, E1 के बाहर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। कब तक? जब तक प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। प्राइस इंक्रीज हुआ, देखो ये हमारा MR आ गया, प्राइस इंक्रीज हुआ तो नया MR का वो आ गया, MR के नीचे क्या आया हमारा? ABC। इसका मतलब हम इतना अर्न कर पाने की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। देन इफ यू गोइंग टू सी द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री। ये था, हमने देखा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। अब देखेंगे हम शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री। सेम, नथिंग इज देयर। व्हेन यू विल गोइंग टू ऐड द सप्लाई कर्व्स ऑफ द इंडिविजुअल सेलर, जब इंडिविजुअल सेलर्स के सप्लाई कर्व को ऐड करते हैं तब क्या हमको निकलता है? विल गेट व्हाट? सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन, सपोज दिस इज व्हाट, suppose this is a supply curve. Now 3 diagrams will be there. Suppose this is a supply curve of A, supply curve of B. ये क्या है तुम्हारा? A का supply curve है, ये क्या है तुम्हारा? B का supply curve है। When you will going to add the supply curve of two firms, then you will get what? Supply curve of industry. You are aware of that direct relationship होता है किसमें? प्राइस में और सप्लाई में। यस और नो? प्राइस और सप्लाई में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यू आर अवेयर ऑफ दैट। सो दिस इज व्हाट शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री। व्हेन यू विल गोइंग टू ऐड द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ A एंड B, और जितने भी प्लेयर्स होंगे मार्केट में उनके शॉर्ट रन सप्लाई कर्व को ऐड करोगे, देन यू विल गेट व्हाट? Short run supply curve of an industry. So if you're going to see an industry comprises of all the firms producing the same commodity, the number of firms in the industry does not change in the short run as there is no entry and exit during this period. शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व इंडस्ट्री का चेंज नहीं होता, वो उतना ही होता है। क्यों? क्योंकि देर इज़ नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अपार्ट फ्रॉम दिस we can obtain the short run supply curve of an industry by adding up all the supply curve of the firm. Individual firms के supply curve को add करो, automatically तुमको supply curve क्या होगा? मिल जाएगा। Apart from this, geometrically we can have a horizontal summation of the supply curve of all the firms to obtain the industry supply curve. In short, if I say suppose B supply कर रहा है 100 units, A supply कर रहा है market में 200 units, तो 100 and 200 कितना हुआ क्लास? ये हो गया 300। तो टोटल इंडस्ट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है? 300 का। दैट इज नथिंग बट इट वांटेड टू से। अपार्ट फ्रॉम दिस द एक्सप्लेनेशन पार्ट, इफ यू गोइंग टू सी, वी हैव अ टू फर्म A and firm B which can be extended to all the firms in the industry. Adding the horizontally the supply curve of all the firms, we have an industry supply curve. जब दोनों के सप्लाई कर्व को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व। एंड ऑल द सप्लाई कर्व्स स्लोप्स अपवर्ड। सब क्या हो रहे हैं? It's sloping upward from the left to the right, indicating that when the price will going to change, when the price will going to increase, supply will also going to increase. जैसे जैसे price increase होगा, supply भी increase हो जाएगा। Then all the supply curves slows upward from left to the right, and they have a positive slope indicating a direct relationship between the price and the quantity supplied, and there are the many more things. So this was only the case जो हम लोग ने अभी cover किए, and you are aware of that there is a direct relationship और पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कहाँ पे? तुम्हारा सप्लाई और प्राइस के केस में। सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, और यू कैन से द डायरेक्ट रिलेशनशिप इन केस ऑफ अ सप्लाई एंड द प्राइस। सो दिस इज़ नथिंग बट द सप्लाई कर्व विच वी हैव कवर्ड, एंड नाउ वी विल गोइंग टू सी द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व विच इज़ द सिमिलर वन।
when we talk about the long run supply curve, the long run supply curve of a competitive firm, long run supply curve of a competitive firm is a period where all the costs are variable. लॉन्ग रन में क्या होता है, सभी कॉस्ट क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, नथिंग इज फिक्स्ड, ऑल आर वेरिएबल. लॉन्ग रन मतलब होता है आज के 15-20 साल बाद, आफ्टर 15 और 20 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, दैट इज अ पीरियड वेयर यू कैन चेंज एनीथिंग. आफ्टर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स इवन आई कैन चेंज माई बिजनेस, आई कैन चेंज माई कंपनी. कंपनीज के भी नाम चेंज हो जाते हैं आने वाले 5-10 सालों में. You can see there are the few examples you can take of it. Earlier the Vodafone and Idea, they were the two different firms, but now they came together. Earlier they were the different entrepreneurs, abhi kya ho gaye, they came together and now they are Vodafone Idea, that is V. So in a similar manner, earlier there was a Hutch and then it became Vodafone. Earlier there was a Facebook, now it is Meta. Earlier there was a WhatsApp and Instagram, now they are with the Meta company, they are with the Facebook company. So even the entrepreneurship can change. Owner भी change हो सकता है long run में. Long run में owner भी change हो सकता है. That kind of a situation is. So that's why when we talk about the word change का मतलब it is variable. So long run में बहुत सी चीज़ें change हो सकती हैं. There is a free entry and exit from the market. As a result, the firm will earn only the normal profit. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कोई अर्न नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट ही सब अर्न करेंगे, बिकॉज वो सिचुएशन ऐसा होगा जिसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगी, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा. एंड दैट सिचुएशन, इफ वी एक्सेप्ट द डिफरेंशियल कॉस्ट, वी हैव द सिचुएशन ऑफ सम फर्म्स अर्निंग द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. नाउ जैसा मैंने बताया, प्राइस कौन डिसाइड करेगा, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. लेकिन मार्जिनल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाथ में होता है सेलर के. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाथ में किसके होता है, सेलर के. तो अगर सेलर अगर डिफरेंशियल कॉस्ट यूज़ करता है, मैं कम में प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तुम ज़्यादा में प्रोडक्शन कर रहे हो, तो नेचुरली मैं प्रॉफिट अर्न ज़्यादा करूँगा एज़ कम्पेयर टू यू. सो यहाँ पे वो सिचुएशन है. And according we have a supply curve of a firm which is a MC curve above the AC curve as shown, that we're going to see. In the long run, a firm must earn enough to cover all the cost and earn the profit sufficient enough to provide an adequate rate of a return on the firm's shareholders. लॉन्ग रन में हमको क्या करना है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है. एंड ये ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ देखेंगे हम लोग. विल गो टू सी व्हाट वी कैन डू. सो एज आई हैव टोल्ड यू, अभी हमने देखा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो था, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं. लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की जब बात की जाए तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल है. वेरिएबल का मतलब क्या है, चेंज होने वाला, द थिंग विच कैन चेंज. एंड यहाँ पे सप्लाई कर्व कैसे डिसाइड होता है लॉन्ग रन में, इंडिविजुअल फर्म्स के सप्लाई कर्व कैसे डिसाइड होते हैं लॉन्ग रन में. सो लेट्स सी. Suppose the same situation, this is your MR which is equals to AR and it is equals to what, price. This is what, MC curve, that is what, marginal cost curve. As I have told you, in short run में क्या होता है, शॉर्ट रन में सभी कॉस्ट क्या हो जाते हैं, शॉर्ट रन में क्लास, इन शॉर्ट रन द कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल. और इसीलिए यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है. लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, इन केस ऑफ अ लॉन्ग रन, all the cost is nothing but the variable in nature.
ऑल द कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट, वेरिएबल इन नेचर, वेरिएबल हो जाते हैं, ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल, नथिंग इज परमानेंट, all will going to change. And that's why यहाँ पे when we talk about the average cost, AC is nothing but what, all is nothing but your variable only, that is variable cost, all the cost will be variable. Now again the same example जैसा हमने short run में किया था, long run में when the MC curve will going to intersect your MR curve from below, that is nothing but your point of equilibrium. ये क्या होगा आपका point of equilibrium. यहाँ पे हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग द Q1. इसके पहले अगर प्रोडक्शन करेंगे तो शट डाउन होगा, इसके बाद में प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा, शट डाउन. इसके पहले भी शट डाउन, इसके बाद में भी शट डाउन. तो हमें कहाँ पे प्रोडक्शन करना है, ई पे, तब जाके हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा. तब हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज. क्यों, क्योंकि इसके पहले क्या हो रहा है, इसके पहले हमारा एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो ग्रेटर देन योर एवरेज रेवेन्यू. दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज, मतलब प्राइस हमारा इतना है और कॉस्ट देख रहे हो, कॉस्ट कितना है, ये पोर्शन भी लॉस का है, ये पोर्शन भी लॉस का है. एवरेज कॉस्ट यहाँ पे है और प्राइस हमारा यहाँ पे है, कॉस्ट यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे, मतलब इतना हम लोग कमा रहे हैं और इतना हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. सो इफ यू गोइंग टू सी दिस पोर्शन इज नथिंग बट दैट पोर्शन विच रिप्रेजेंट्स इन फ्यूचर देयर विल बी द शट डाउन पोजिशन. सो शट डाउन पोजिशन को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, हमें सप्लाई इंक्रीज ही नहीं करनी. विल नॉट गोइंग टू इंक्रीज द सप्लाई. कब तक, जब तक मार्केट में प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज ना हो जाए. मार्केट में प्राइस कब इंक्रीज होगा, वो मार्केट प्लेयर्स डिसाइड करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. तब तक क्या करना है, तब तक हमको इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें प्रोडक्शन करना है. जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, व्हेन द प्राइस विल गोइंग टू इंक्रीज इनटू द मार्केट, व्हेन द प्राइस विल गोइंग टू इंक्रीज इनटू द मार्केट, दैट टाइम what we will going to do, at that time this is your price, this is your new price. When the price will going to increase into the market, मार्केट में जब प्राइस इंक्रीज होगा तब जाके हम लोग क्या करेंगे, at that time will going to increase our supply. If you're going to see earlier this was the point of equilibrium जहाँ पे MC इक्वल है किसके, MR के. इसके बाद if you're going to see the new point of intersection is E1. E1 पे क्या हो रहा है, अगेन MC क्या कर रहा है, MR को नीचे से कट कर रहा है, और ये पोजीशन पे क्या है, एट दिस पोजीशन MC इज इक्वल्स टू व्हाट, योर MR. फर्स्ट थिंग, MC इज इक्वल्स टू व्हाट, योर MR. सेकेंड थिंग, इफ यू गोइंग टू सी यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन विल गोइंग टू प्रोड्यूस आवर गुड्स एंड सर्विसेज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज व्हेन विल गोइंग टू इंक्रीज द Q2 क्वांटिटी. यहाँ पे रेवेन्यू तुम्हारा कितना है, MR1. कॉस्ट कितना है तुम्हारा, दिस इज द कॉस्ट. कॉस्ट कितना है, सिर्फ AC है. दैट मीन्स दिस पोर्शन इज नथिंग बट ऑफ अ प्रॉफिट व्हेन द प्राइस विल गोइंग टू इंक्रीज. और जब प्राइस इंक्रीज होगा तभी हम क्या करेंगे, अपने क्वांटिटी सप्लाई करेंगे. अब जब व्हेन योर सप्लाई विल गोइंग टू इंक्रीज, increase in supply is represented by the increase in the marginal cost. Increase in supply is represented by the increase in the marginal cost. क्यों, क्योंकि सप्लाई जब इंक्रीज होगा, सप्लाई क्यों इंक्रीज होगा, सप्लाई कब इंक्रीज होगा, सप्लाई तब इंक्रीज होगा जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, एडिशनल प्रोडक्शन होगा, एडिशनल आउटपुट होगा. जब बात होती है एडिशनल आउटपुट की, तो एडिशनल आउटपुट का मतलब क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द एडिशनल आउटपुट, ये एडिशनल आउटपुट इज अटैच्ड विद द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एडिशनल आउटपुट के लिए एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें बेयर करना पड़ेगा, और एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट योर मार्जिनल कॉस्ट ओनली. तो जब सप्लाई इंक्रीज होगा तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होगा,
increase होगा, it will going to change. So that's why when the supply will going to increase, MC curve will also going to increase, or marginal cost will also going to increase, and these things will be represented by this particular point. Can you see this one? ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, दिस इज नथिंग बट व्हाट योर सप्लाई कर्व. ये क्या है तुम्हारा लॉन्ग रन का सप्लाई कर्व. आर यू गेटिंग इट? ये क्या है तुम्हारा लॉन्ग रन का सप्लाई कर्व. सो यहाँ पे दिस पॉइंट फ्रॉम E to E1, दिस इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स प्राइस. यहाँ पे चेंज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस के इंक्रीज होने पे सप्लाई भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. कैसे? तो देखो प्राइस यहाँ पे पहले कितना था, P था, फिर प्राइस P से क्या हुआ, P1 हो गया. इन द सिमिलर मैनर सप्लाई कितना था पहले, Q1, अभी कितना हो गया, Q2. और यू कैन से दिस इंक्रीज, ये जो इंक्रीज हुआ है ना, ये इंक्रीज कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज इंक्रीज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट E एंड E1. E और E1 का जो पोर्शन है वो हमें बताता है क्या, सप्लाई. एंड दिस इज योर लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, जहाँ पे AC क्या है, एवरेज कॉस्ट, और सब कॉस्ट क्या होते हैं, ऑल द कॉस्ट इन द लॉन्ग रन इज वेरिएबल इन नेचर. दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ अ एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन. इफ यू गोइंग टू रीड द एक्सप्लेनेशन पार्ट, चलो एक्सप्लेनेशन पार्ट भी देख लेते हैं आज क्या है. इन द लॉन्ग रन पीरियड ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू गोइंग टू सी, we have the supply curve of a firm which is MC curve above the AC curve shown in the figure 22.7. So 2.7 फिगर जो हमने अभी ऑलरेडी देखा हुआ है, इसमें अगर जब ध्यान दोगे तो ये MC कर्व AC कर्व के ऊपर ही है. एंड ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इट रिप्रेजेंटिंग योर सप्लाई कर्व. इन द लॉन्ग रन अ फर्म must earn enough profit, the enough amount of money to cover all the cost and gain the profit sufficient enough to provide an adequate rate of return on the firm's shareholder. The same thing, जो शेयर होल्डर्स होंगे वो कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स होंगे वो बिजनेस के, उनको क्या करना है हमें, उनको देना है हमें एक रेट ऑफ रिटर्न, एक प्रॉफिट का हिस्सा, बाय सप्लाइंग मोर क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस एंड अर्निंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट. That's thus the firm's long run supply curve is that portion of the MC above the AC, and long run supply curve follows the MC, जहाँ पे MC कर्व तुम्हारा क्या होगा, ग्रेटर होगा AC के. ये MC कर्व इज ग्रेटर देन AC कर्व, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये तुम्हारा AC कर्व है और ये तुम्हारा MC कर्व है. यहाँ पे देखोगे ये पोर्शन अगर देखोगे, इफ यू गोइंग टू सी दिस पोर्शन, this portion represents what, this portion represents the portion where MC is greater than your AC. मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ग्रेटर देन है किसके, एवरेज कॉस्ट के. एंड फिगर 2.7, a firm starts its supply at a point E where P is equals to MC is equals to M, producing the OQ quantity. As the price increases, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई भी क्या हो जाएगा, एक्सपांड होगा अलॉन्ग विद द MC कर्व. प्राइस इंक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुआ, जो हमने ऑलरेडी देखा. अकॉर्डिंग टू द प्राइस P1, OQ1 आउटपुट इज प्रोड्यूस एट E1 एंड P1 इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू MR, एंड द फर्म्स लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज EE1, दैट इज द पार्ट ऑफ द MC कर्व अबव द लोएस्ट पॉइंट ऑफ AC. And it is not possible to work out a long run supply curve of an industry as the number of firms in the industry do not remains the same. And in the long run due to the free entry and exit, सब क्या करते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट में कोई आएगा कोई जाएगा, तो वहाँ पे एक लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि हमने शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री देखा था. इंडिविजुअल फर्म के केस में हम सप्लाई कर्व बना सकते हैं. इन केस ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स the supply curve will going to look like this. In case of individual firm, this portion, that is portion of E to E1, ये क्या है हमारा सप्लाई कर्व है, जो प्राइस के इंक्रीज होने पे सप्लाई इंक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है. दैट इज ओनली द केस.
So this is how we completed the second chapter class, which is nothing but what your the perfect competition is. Till the time what all of you will going to do, you'll just going to revise the previous chapters, and in the next lecture we're going to come up with we're going to solve the objectives of a first chapter and second chapter. So be there with us. Thanks for watching the video. Please subscribe the channel, and we're going to continue in our next lecture, the journey of economics. Thank you.